Hello everyone. Just before it, we have just finished the two chapters, your computer, ICT, and then after we are just discussing about the third chapter, Information Communication Technology 1. इसके पहले आप लोगों ने दो चैप्टर जो पढ़ा उसमें जो है आपकी स्किल्स जो है दी हुई थी, स्किल्स चैप्टर थी। जो फर्स्ट दो चैप्टर्स आपने पढ़े, ठीक है, उसका नाम जो है मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, आपकी दो चैप्टर थी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें आपको जो है बताया गया कि हाउ टू कम्युनिकेट in the environment just beside you and just before you. It means whenever you will just going in the society, then how will you communicate in the different kinds of the area with the different kinds of the people, and how will you just keep your matter before anybody, explaining any kinds of the matter before anybody, and how to react any kinds of the skills, body languages, words, grammatical mistakes, each and every kinds of the discussion we have just done before it. So actual computer, it means the ICT, information communication technology, is starting up now. Then this is the third chapter and your examination will be on 20 of the July 2020. So you will get your syllabus and you will get your questions from this chapter, and also if you will just read after that chapter, it means the chapter 4, then you will also get the some question from that. But I just be explaining that this is the very big chapter and you will get the question from this chapter, so it is very necessary to read this chapter very carefully. And as you know very well, all the students, that this is the compulsory subject now, so you have to read it at any cost anyhow, and read it carefully. If you have any kinds of the problem communicating in English, then you can say me, you can just comment me. I will certainly explain each and every kinds of the matter in Hindi also. Okay, so just let's get a start. Information communication technology, ICT, information and the communication technology refers to the convergence of the tool of the information and the communications. Here information refers to the processed data or the output that is generated by the computing devices, and communications refers to the transfer of the knowledge and information. ICT has the enabled with a vast array of new communication capabilities. The resources of the telecommunication includes broadcast media transmission, network based control, telephone lines, wireless signals, whereas the resources of the information technology includes the data, information, software, audio, video processing, etc. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो कन्वर्जेंस ऑफ द टूल्स, यानी कि पहले से और ज़्यादा एडवांस जो है टूल्स आ गए हैं, मशीन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से जो है किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, जो डेटा है हमारी डेटा, वो अधिक से अधिक जो है अंडरस्टैंडेबल और स्टैंडर्डाइज्ड हो गई है। ठीक है ना, जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार की डेटा हम क्रिएट कर देते हैं, ताकि जो है किसी भी व्यक्ति को आसानी से वो चीज़ जो है समझ में आ जाए, जिस भी स्टैंडर्ड की उसकी IQ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो है किड्स की जो क्लासेस होती है, उसमें जो है उनको जो राइम्स वगैरह बताई जाती है, वो राइम्स वगैरह एनिमेशंस के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशंस जो है टेक्नोलॉजी का देन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है एनिमेशंस में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो किड्स है उसमें इंटरेस्ट भी ले रहा है और आसानी से उसे सीख भी मिल जा रही है, उससे वो सीख भी लेता है, बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है। पहली चीज़ हो गई ये, तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई। टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे मशीन्स आ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी प्रकार की नॉलेज को, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की जब नॉलेज को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वह क्या हो गई? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, इट मीन द, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस सिग्नल्स का यूज़ कर रहे हैं, इन सब सारे का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये सारे के सारे जो है चीज़ आ जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स आ जा रहे हैं। क्या है? कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन
refers to the transfer of the knowledge and information. So next, processing data, gathering data, ICT, storing data and processing data. अब यहाँ देखें, प्रेजेंटिंग डेटा, सॉरी फर्स्ट दिया है प्रेजेंटिंग डेटा, तो प्रेजेंटिंग डेटा यानी कि किसी भी डेटा को, हम किसी भी विषय को कितने अच्छे से, मैंने अभी इसके पहले एग्जांपल आपके सामने रखा कि जैसे कि छोटा बच्चा है, किड्स है, उसको जो है किसी भी प्रकार के विषय को बताया जाता है तो एनिमेशन के रूप में उसको कहानी या फिर बहुत सारे ऐसे राइम्स होते हैं जो बताया जाता है जिससे आसानी से वो समझ जाता है। यानी कि किसी भी विषय को अगर कोई चीज़, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आप लोग देखते होंगे, ऐड आप बहुत सारे आपके टीवी चैनल्स पे, बहुत सारे टीवी चैनल्स जो होते हैं उस पे जो है टूथपेस्ट का ऐड दिखाता है, ठीक है, तो कभी हेयर ऑयल का ऐड दिखाता है, तो उसमें क्या पूरे एड्स को इतने अच्छे से फिल्माया गया रहता है, ऐसे जो है एनिमेशन के रूप में दिया रहता है, जैसे ऊपर से किसी कह सकते हैं आयुर्वेदिक पेस्ट, टूथपेस्ट का जो है अगर दिखा रहा है तो दिखाता क्या है कि एक नीम का जो हम लोग दातून करते हैं, दातून टाइप का जो है एक ब्रांच है, वो जो है पिसता है और पिस करके उसमें से बूंद टाइप का जो है गिर रहा है एनिमेशन के रूप में, और वो पेस्ट का जो ट्यूब बना रहता है उसके अंदर एकदम जाता है और वो पेस्ट का ट्यूब दमक उठता है। तो ये एनिमेशंस है, ये एनिमेशंस क्या करते हैं हमारे दिमाग पे एक अलग ही छाप छोड़ते हैं, ठीक है ना। जब अगर हम लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं, जब इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे दिमाग में वो एनिमेशन जो है चलता रहता है, ठीक है ना, जो कि बहुत देर तक, और व्यक्ति के दिमाग में जो चलता रहता है ऑब्वियस सी बात है उसी पे उसका ध्यान जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसी को परचेस करते हैं। यानी कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग सेटिस्फाइड कर दें सामने वाले को, है ना। तो यह हमें जो है प्रेजेंटिंग डेटा सिखाता है। तो डेटा को हम किस प्रकार से प्रेजेंट करें, फिर उसके बाद से डेटा को कैसे हम गैदर करके रखें, यानी कि इकट्ठा करके रखें, गैदर करते हैं। गैदर मतलब क्या, गैदर मतलब जो है जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशंस है उसे गैदर करना, ठीक है ना। और स्टोरिंग डेटा यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों के पास है, जो डेटा है, उसे इन फ्यूचर रिट्रैवल के लिए, इन फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखना। और प्रोसेसिंग डेटा कैसे जो है वो प्रोसेस करता है, ठीक है ना, ताकि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो जाए। इन सब सारे जो है ब्रांचेस के बारे में हम इसके बारे जानेंगे आईसीटी में, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, आईसीटी का रोल और इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी भूमिका और महत्वता, ठीक है ना, क्या है आईसीटी का। तो आईसीटी deals with the digital data and the way to create, store, retrieve and transmission of data. The resources of the ICT is being applied in all the sectors of the human activity, leading to a life of the more facilities. The convergence of the different technology in the ICT is being applied in the academic, health, business, government, communities to widen the use of their resources in education. आई थिंक आपको जो है ऊपर जो बताया गया वो समझ में आ गया। आईसीटी डील करता है डिजिटल डेटा के साथ, ठीक है। अब इस डिजिटल डेटा का बहुत सारे जो है जगह यूज़ होता है, जैसे एकेडमिक में, हेल्थ में, बिजनेस में, गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ में। अभी आप देखेंगे आधार कार्ड का जो डेटा है वह, उसका एग्जांपल जो है हम ले सकते हैं, वह क्या चीज़ का एग्जांपल हो गया। तो आधार कार्ड का डेटा हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक जो है एक डिजिटल डेटा का काम करता है ना। फिर उसके बाद से क्या है कि इन एजुकेशन, हम एजुकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन में किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, तो अभी आप देखोगे कि जितनी भी आपकी पढ़ाई हो रही है, जितनी भी आपकी पढ़ाई हो रही है अभी इन दिस डेज, तो वह जो है डिजिटल माध्यम से ही हो रही है। अभी आपको जो है जो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से यह मिल रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या हो गई, डिजिटल डेटा हो गई, ठीक है। Imparting the education and the training is the most important aspect of the human society. ICT has made it possible that the knowledge reaches everywhere in the best possible way. It is helpful to make the teaching and learning process an active and a continuous process that can be connected to social life of all citizens, as it has the potential for the reaching remote places and increasing access. वैसी जगह जहाँ पे जो है स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अच्छे टीचर्स नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे भी जो है उन टीचर्स के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना, जो नॉलेज होते हैं वो बच्चों के पास पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे पहुंच रहे हैं, ड्यू टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू आईसीटी, ठीक है।
डिजिटल इंफॉर्मेशंस के वजह से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। It is providing wide opportunities to the scattered and the rural population, especially to the traditionally included people from the education due to culture or social reasons such as the ethnic minorities, girls, persons with the disabilities, and the elderly ones. It is helping people who are the absent to educate due to the cost or the because of the time constraints. Education by the ICT is the reaching too many with the equality डिलीवरेजेंस इन मैनी वेज लाइक द वर्चुअल क्लास। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो है मैं डिफ़ाइन करूँगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे लोग जो कि सही तरीके से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वैसे लोग जहाँ तक स्कूल नहीं पहुँच सकता है, या वैसे लोग जो स्कूल तक नहीं पहुँच सकते हैं, आज वो भी जो है ज्ञान का विस्तार हो रहा है उनका भी, और वो भी बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है सीख रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द आईसीटी। अब यहाँ पे आईसीटी में सबसे पहला पॉइंट है वर्चुअल क्लास। जैसे अभी आप लॉकडाउन में हैं या अनलॉक में हैं, और कोरोना वायरस की जो है ये वैश्विक महामारी जो चल रही है, ठीक है, तो पेंडेमिक कोरोना वायरस में भी आपकी पढ़ाई नहीं रुक रही है, ठीक है, आप आसानी से घर बैठे जो है पढ़ रहे हो। वो भी जो है आपके जो पसंदीदा टीचर्स हैं, आपके जो स्कूल टीचर्स हैं, जो कि आपको हमेशा आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और आपको उनकी भाषा अच्छे से समझ में आ गई है, उसके साथ आप फैमिलियर हो गए हो, ठीक है। अगर कोई और अचानक पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इट मे बी, बट जो है आप जिसके साथ फैमिलियर हो जाते हो उसके बाद आसानी से आप समझ जाते हो, ठीक है। तो क्या है कि वैसे टीचर्स की जो है आसानी से जो भी क्लासेस है आप तक जो है मिल जा रही है, प्रोवाइड कर दी जा रही है, तो ये ड्यू टू आईसीटी की वजह से, यानी वर्चुअल क्लासेस की वजह से, ठीक है। आईसीटी इन this process of the making the classroom digitalized in the classroom digital board are the being installed along with the LCD projector that are the connected to the server of contents over the network internet. The teachers take help of the such contents to demonstrate about the various topics that help the students to understand with the broader perspective. Such arrangement also help the teachers to store the contents for the further uses that are written on the board while the teaching in class. By virtual class, live demo of any activity or the concept can be given. It establishes realistic approach for the training. अब ये क्या है कि आप लोग जो क्लासेस जो कर रहे हो वो बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है सामने क्लासेस में बैठ करके आसानी आराम से जो है पढ़ रहे हो, ठीक है। दो तीन चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन करने के पहले आपको बताना चाहूँगा। आपके जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊँगा ये वीडियो के माध्यम से ही आपको मिलेगी, ठीक है। आपको मैं बोलूँगा, ठीक है, और आप जो है आसानी से उसको नोट डाउन करोगे। जिस प्रकार से क्लास में भी जो है जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं लिखवा देता हूँ, अदरवाइज़ मैं बोल देता हूँ तो आप लोग आसानी से लिख जाते हो, क्योंकि आप लोग सीनियर क्लासेस हो, ठीक है, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देन ठीक उसी तरह से आप लोगों को मैं बोलूँगा और आप उसका क्वेश्चन आंसर करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? आईसीटी enables to organize video conferencing that telecast the imparting of the lectures, discussions about the problems, and providing instant solution, clarifying the doubts, etc. Such classrooms teaching are the being supported by e-learning concept in which the projectors and the internet features are used for the online communication by renowned and well experienced faculties, and there is the divergence of contents to demonstrate or important on important topic as well। यानी कि आपको जो है फैकल्टीज़ के माध्यम से, फैकल्टीज़ के द्वारा जो है आपको जो है लेक्चर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, अभी आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली है या इससे पहले भी आपकी एग्ज़ाम्स हुई है, वो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। या बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी जो होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पे सभी जाते हैं, बैठते हैं, और बैठे बैठे सभी जो है एक ही जगह से साइट खुलती है और उस समय जो है वो लोग एग्ज़ाम्स दे पाते हैं। और
जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसके रिज़ल्ट जो है क्विक एंड फास्ट जो है बहुत जल्दी जो है आ जाती है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द यूजिंग आईसीटी टूल्स, आईसीटी टूल को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, एजुकेशनल फील्ड में। एक्सेस टू द रिमोट लर्निंग, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है आसानी से कहीं भी हमारी पढ़ाई लिखाई की बहुत सारी जो भी नॉलेज है वो पहुंच पाती है और वहाँ पे के लोग लाभान्वित हो पाते हैं। दूसरा है यूज़ ऑफ मीडिया, यानी कि जो है आईसीटी के माध्यम से हम बहुत तरह के जो है वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ये सब सारे जो है यूज़ कर पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है रिकॉग्नाइजिंग होता है, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम समंदर के बारे में पढ़ रहे हैं तो समंदर का वीडियो जो है देख सकते हैं, समंदर का चित्र देख सकते हैं। मछली के बारे में पढ़ रहे हैं तो मछली का चित्र देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ईजियर एक्सप्लेनेशन। Teachers can easily demonstrate to explain about the complex instructions and ensure students understanding, यानी कि टीचर जो है घर बैठे बैठे आसानी से किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को आसानी से डेमोस्ट्रेट कर पाते हैं, बता पाते हैं, है ना। नेक्स्ट, इंट्रैक्शन, यानी कि घर बैठे बैठे या दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे बैठे आसानी से बिल्कुल लाइव इंटरेक्टिंग क्लास करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि जो है सामने खड़े होकर क्लास लिया जा रहा है। इन्वामेंटल सेविंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इन्वामेंटल सेविंग। कंप्यूटर का यूज़ करने की वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पेन पेंसिल का यूज़ नहीं होना है, कागज़ का यूज़ नहीं होना है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी इन्वामेंट में नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी जो है खपत कम होगी और उसका बचाव होगा, ठीक है। इन हेल्थ केयर में भी बहुत ही शानदार यूज़ होता है। जी हाँ, द इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑन द हेल्थ सिस्टम आर द रिवोल्यूशनाइज्ड द हेल्थ एंड द मेडिकल केयर फैसिलिटीज़, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके वजह से जो है हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी और अच्छे से और एक्यूरेट मिलने लगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए पहले हर चीज़ जो है गेस के रूप में होता था, है ना, हर चीज़ को गेस करना पड़ता था, ठीक है। बट आज क्या है कि कंप्यूटराइज जो है सभी चीज़ों की रिपोर्ट मिलती है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या इसका यूज़ होता है, तो मैंने जैसा कि बताया भैया बहन आप सभी को जो है कि चैप्टर्स काफ़ी बड़ी है, इस वजह से पार्ट करके जो है पार्ट वाइज जो है आपको ये वीडियोस उपलब्ध होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ बता दूँ कि आपको केवल आपके रूटीन वाले डे के दिन ही आपको वीडियो नहीं प्राप्त होंगे। आप ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जब भी जो है कोई भी वीडियो की लिंक वगैरह जाती है तो उसे जो है ज़रूर ओपन करके देखें, ठीक है, और समझें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।